Great morning, students. I hope you are fine at your home. But today we are going to discuss our second chapter. That's name is matter as ground is pure or not. In this chapter, as you know very well, we have studied about the matters. In the first chapter, we have learned what is the matter and what are the properties of the matter. As you know very well, matters is anything having mass and volume. Mass, as you know very well, it is the actual quantity present in the matter of an object. So it cannot be changed. It is the actual quantity that is present in any object. So mass is measured with a balance and its measuring unit is gram. So mass is related with the weight, but it is not same thing. As we know very well, mass is the actual quantity that is present in any body, but weight it is the product of the mass with the gravity. Means कितना gravity का force means force of centripetal force of the earth is applying over the object. It is pulling towards it, and that is the force that is pulling towards it. जो आपका पुल करता है ऑब्जेक्ट को, जितना फोर्स वो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट करता है किसी बॉडी पर और जितना उसका मास है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास टू द ग्रेविटी. सो यू कैन से weight is the actual quantity not present in any body, but it is a force that is exerted by the earth center to any body so that it can be pushed or pulled towards it. Now weight is independent upon the gravity. As you know very well, weight हमारा डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, बट मास आपका इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटी से. बिकॉज मास आपकी एक्चुअल क्वांटिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की. जितनी क्वांटिटी जिस ऑब्जेक्ट की होती है उतना ही वो वैल्यू को गेन करता है. सो मास नेवर बी चेंजेस. Now next property is volume. Anything that is occupied by matter is called as volume. Now next about it, as you know, what are the properties of the matter? In our first chapter we have discussed different properties of the matter. In this there was the first property was the matters are made up of the particles. Matters particles के बने हुए होते हैं and these particles occupy some space in them. ठीक है, पार्टिकल्स स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. दे हैव सम स्पेस इन दैम. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेस वी हैव अरेंज दैम इनटू 3 कैटेगरीज. हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस. सो ऑल दीज 3 कैटेगरीज वी हैव स्टडीड इन द थर्ड चैप्टर. हम सारी चीज़ें ये फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं. Now in this we will study about the composition. So what is the matter is made up of? आपको पता है अच्छी तरह मैटर्स आपके पार्टिकल्स के बने होते हैं और उनका फिक्स रेशियो होता है ताकि वो एक दूसरे के अंदर जॉइंट अप करके रख सकें. Now next topic is about what is the basic unit of the matters. That is the smallest unit that cannot be further divided. ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम एटम कहते हैं. एज यू नो वेरी वेल, वी हैव डिस्कवर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन आवर नेचर. साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर अप टू दिस टाइम 118 एलिमेंट्स. आउट ऑफ दैट 18 आर नॉन मेटल्स एंड रेस्ट ऑफ अदर्स आर मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. एज यू नो वेरी वेल, metals have certain properties. Just like they have ductile, they can be changed into wires, they can be changed into sheets. They are the good conductors of the heat and electricity. Along that they are sonorous, means they are producing sound out of them. Along that they are more malleable, they can be sheet formed, and moreover they are non-metals. सो बेसिक जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, so that cannot be divided further. For example,
ए वॉल है, एक वॉल में एक ब्रिक है, वो ब्रिक एक एटम का काम करती है। लाइक वाइज यू कैन से एटम्स के बेस पर हम डिवाइड करते हैं हमारे टोटल जितने भी आपके टोटल कंपाउंड्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर। एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स में सिर्फ एक टाइप का एटम होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हाइड्रोजन के ही एटम प्रेजेंट होते हैं। कार्बन है, कार्बन में सिर्फ कार्बन के ही एटम होते हैं। ऑक्सीजन है जिसमें ऑक्सीजन के ही एटम होते हैं। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिमेंट्स। सो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म द कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनको कंबाइन करके हम कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स आर न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम हेल्ड टुगेदर बाय देयर नेचर्स। एज यू नो, जब मोर देन आप नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइन करते हैं तो उससे हमारे कंपाउंड्स बनते हैं। सो देयर नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट देयर। नाउ हाउ डू वी क्लासीफाई द मैटर्स? फिजिकल स्टेट्स के बेस पर हम मैटर्स को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बेस की बात करें तो वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। देयर इज़ प्योर एंड मिक्सचर। प्योर मीन्स दे वुड बी प्योर, प्योर मीन्स दे विल बी मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। जब वो आपके वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं उसको हम प्योर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑल दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ इट। बट मिक्सचर, दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, वो आपके डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर होती है एयर, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक दैट वी हैव लर्नड about the elements and topics. Thank you and have a nice day.